ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਨਸਾਈਟਸ ਵਿਦ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲੀ ਸੈਗਮੈਂਟ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਟਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਦੀ, ਕਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਵਰਕ ਇਨ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਾਅਵੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਪਡੇਟਸ ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਫਾਊਂਡਰ ਐਂਡ CEO ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਟੂਡੇ ਚੈਨਲ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੂਦ ਸਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਗੁਰਲੀਨ ਸਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਕੁਝ ਕੁ ਹਿੱਟਸ, ਕੁਝ ਕੁ ਮਿਸ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮੀਦਾਂ ਹਲੇ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਨਾ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਰ ਮਹੀਨਾ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ, ਫਸਟ ਮੰਥ ਐਨੀਵਰਸਰੀ, ਸੈਕਿੰਡ ਮੰਥ ਐਨੀਵਰਸਰੀ, ਫਸਟ ਵੀਕ ਐਨੀਵਰਸਰੀ, ਤੇ ਲੋਕੀ ਥੋੜੇ ਇੰਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਜੇ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਵੇਖ ਲਓ, 4, 5 ਸਾਲ, 6 ਸਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਔਨ ਐਨ ਐਵਰੇਜ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਟਰਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਰੀਜ਼ਨ ਫॉर दैट, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ इज़ वेरी डिफरेंट या किसी स्टेट ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ इज़ वेरी डिफरेंट कि एक छोटी मोटी कंपनी ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ। इट टेक्स टाइम टू मूव थिंग्स, इट टेक्स टाइम टू अंडरस्टैंड थिंग्स, इट टेक्स टाइम टू सैट अप पीपल एट द राइट प्लेस। ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਬੈਠ ਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੱਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਅਨਫੇਅਰ ਟੂ them, ਬਟ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕੈਨ ਐਡਵਾਈਜ਼ them ਕਿ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਗੈਪ ਆ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਜਿੱਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਬਿਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਫਰਟਸ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਣਗੇ, ਉਹ ਹੈ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਮਿਊਨਲ ਹਾਰਮਨੀ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੱਤਵ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਔਨ ਗਰਾਊਂਡ ਆਲਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਫੋਲੋਇੰਗ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਊਨਲ ਹਾਰਮਨੀ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇਵੇ। ਸੋ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਇਜ਼ ਵਨ ਏਰੀਆ। ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਡਰਾਈਵ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਮੈਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੰਨਦਾ। ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ 1-2 ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਫਿਸ 'ਚ ਕੰਮ ਪਏ, ਤੇ ਮੈਂ ਜੋ ਉੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲਾਂ 'ਚ, ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ 'ਚ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਬੰਦ ਕਰਤੇ ਨੇ ਜੀ। ਪਰ ਹਜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਊਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਕਢਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਨਕੇਲ ਕੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਸੋਚਦਾ ਪਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਥਰਡ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਅਗੇਨ ਆਪਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਹਜੇ ਐਫਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਕੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਇਨ ਪੰਜਾਬ, that is not happening, that has not been seen। ਕੁਝ ਸਰਟਨ ਲੈਵਲ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਆਵੇ ਜੀ। ਚੌਥਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਲ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਐਡ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਦੀ ਰਾਈਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਅਪਰੋਚ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡ ਵਿੱਚ ਜੇ ਉਹ ਇਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਪੋਸੀਬਲ। ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਹੀ ਸਿਰਫ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਕ ਰਿਸਪੈਕਟੇਬਲ ਲਾਈਫ ਜੀਣ ਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਨਫ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਆਲੀਟੇਟਿਵ ਜੌਬ, ਕੁਆਲੀਟੇਟਿਵ ਲਾਈਫ ਮਿਲ ਪਾਏ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ 'ਚ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਡਿਵਰਸੀਫਾਈ ਕਰ ਪਾਉਣ, ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਚੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਵੀ ਆਰ ਐਟ ਅ ਹਿਊਜ ਇਕੋਲੋਜੀਕਲ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਉਹ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਨਾ ਆ ਜਾਏ ਕਿਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਟੈਪ ਪਿੱਛੇ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਸ, ਯੂਰੀਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪੋਲਿਊਟੈਂਟਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਸੋਇਲ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਏਅਰ ਤੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਵਾਟਰ ਨਾਲ ਜੋ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਡੇਂਜਰਸ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਥ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਨੇ, ਤੇ ਆਰ ਅ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਾਈਨ। ਤੇ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈਲਥ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਤਬਕੇ ਦੇ ਲੋਕੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈਟ ਦੇ ਟਰੈਪ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਰੋਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਬੇਸਡ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਇਲਾਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਇਹਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਉਂਦਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਟੈਪ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਰੋਗ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਜੇ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਹੈਲਦੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫੂਡ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਹੈਲਦੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਰਹੇਗਾ। ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਫੋਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੈਸਟ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰੋਗੇ। ਐਂਡ 'ਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਪੜ੍ਹਾਈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ, ਟੀਚਰਸ ਦੀ ਵੀ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਮਾਡਰਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕਿੱਲ ਬੇਸਡ ਟੈਸਟ ਕਰੇ ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਦੇਖੋ, ਚੰਗੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਚੰਗੀ ਹੈਲਥ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ, ਜੇ ਬੇਸਿਕ 3-4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰੇਗਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਫਰੀ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ। ਤੇ ਇਹ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ। ਪਰ ਅਗੇਨ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਟਰਮ ਹੈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਗ੍ਰਾਫ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਰੋ। 6 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਮੈਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਬਈ ਅਪਾਰਟ ਫਰਮ 1 or 2 ਥਿੰਗਸ, ਰੈਸਟ ਆਫ ਦ ਥਿੰਗਸ ਦੇ ਨੀਡ ਟੂ ਵਰਕ ਔਨ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ 4-5 ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੁੱਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਡਾਈਵਰਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਬਟਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਧਰਮ ਪਾਸੇ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫੋਕਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਟੌਪ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਮਿਊਨਲ ਹਾਰਮਨੀ ਟੌਪ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਰਿਸਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਰਿਸਕ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਆਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਬਟ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਸ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰ, ਕੋਰ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਦੀ ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਵਾਕਈ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕੇ ਬਾਈ ਹੁੱਕ ਔਰ ਕਰੁੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਨਾ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਨਾ ਰਿਸਕੀ, ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੋਰ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਭਟਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ, ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਕੋਈ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੋਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਭਰੋਸਾ ਉੱਠ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਜੀ MLA ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਦੇ ਆ, 25 ਕਰੋੜ ਰੇਟ ਹੈ, ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਵੋਟ ਪਾਣ ਕਿਉਂ ਜਾਏਗਾ? ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨੇ 25 ਕਰੋੜ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਰੀਦ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਹੁਣ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਪ੍ਰੂਫ ਸ਼ੁੱਡ ਕਮ ਆਊਟ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਐਕਿਊਜ਼ੀਸ਼ਨਸ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਡਨ ਵਿਦ ਪ੍ਰੂਫ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਨੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਗਰੋਥ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਕਿਵੇਂ? ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਤਾਈਓ ਬਣਾ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਲੈਟਸ ਸੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਸੀ, ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਸੈਡ ਵਿਦ ਪ੍ਰੂਫ ਜੀ। ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਪੂਰੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਤੋਂ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਕਿਊਜ਼ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਪ੍ਰੂਵ ਇਟ ਜੀ। ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸੈੱਲਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਰਹੋ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਦੀ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਅ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰਿਵੋਲਟ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਰਿਵੋਲਟ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਆਮ ਬੰਦੇ ਹੀ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਪੇ ਕਰਨਗੇ, ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਓ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਮਝਣ ਕਿ ਦੇ ਆਰ ਐਟ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੋजीशंस। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਰਡ ਸੋਚਿਆ ਸਮਝਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। सर, तकरीबन 7 दशक के बाद जो घोषित की जा चुकी थी एक्सटिंक्ट स्पीसीज चीता, उनकी दोबारा वापसी हुई है भारत में, तो कितना बड़ा तोहफा ये इंडियन वाइल्ड लाइफ के लिए? देखो, ये इंडियन वाइल्ड लाइफ के लिए डेफिनेटली इट्स अ वाटरशेड मूवमेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है, चीतों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारी लाइफ में भी।
वो एक बैलेंस बना के रखते हैं, वो हमारे खेतों की प्रोटेक्शन करते हैं। अगर किसी ने भी थोड़ी सी भी बायो पढ़ी है तो हमें सिखाया जाता है बचपन में भी कि शेर अगर इज ऑन द टॉप ऑफ फूड चेन के टॉप पे है तो उससे वो ऐसे हर्बीवोरस एनिमल्स को कंट्रोल में रखते हैं जो हमारे खेतों पे या जिनके साथ हमारा फूड कंपटीशन है उनको कंट्रोल में रखते हैं, एक बैलेंस बनाते हैं और इकोलॉजी को चेंज करते हैं। एलिफेंट्स का भी यही रोल है। तो मेरे को लगता है कि ये बड़ी अच्छी बात है कि भारत क्लाइमेट के पर्सपेक्टिव में, मैं लास्ट टाइम भी एक बार बात कर रहा था कि जो टारगेट्स हमें 2030 तक अचीव करने थे हम ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं कार्बन एमिशंस में। सेकेंडली, हमारे यहाँ टाइगर्स की संख्या भी बढ़ रही है और अगर चीते आएंगे और अगर वो यहाँ पे समहाउ अडेप्ट कर पाए और प्रॉस्पर कर पाए, मेरे को लगता है कि ये हमारी इकोलॉजी और हमारी ग्रीनरी के लिए ओवरऑल बहुत एक मेजर इम्पैक्ट होगा। सर, इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 72वां जन्मदिन, आज का दिन काफ़ी टाइट शेड्यूल रहा उनके, बैक टू बैक 4 इंपॉर्टेंट इवेंट्स उन्होंने किए। तो ये जो इस उम्र में भी एनर्जी और एंथुसियाज्म और जील है टुवर्ड्स नेशन बिल्डिंग एक्टिविटीज़, राष्ट्र निर्माण की गतिविधियों में बहुत ही ऊर्जा के साथ वो शामिल होते हैं, इस बारे में आपका क्या कहना है? देखो, उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी है, जब आप इतने इंपॉर्टेंट रोल में होते हो, एक हर इंसान पहले तो पहुंचता ही कौन है ऐसे रोल पे, जो बंदा मोटिवेटेड होता है, डेडिकेटेड होता है, राइट। सेकेंडली, ही इज अ डिसिप्लिन्ड पर्सन। वो कितनी देर सोते हैं, कब जागते हैं, योगा करते हैं, किस तरह का खाना खाते हैं, एक बड़ी डिसिप्लिन्ड लाइफ जीते हैं। तो 72 की एज में इस तरह की ऊर्जा, पूरी दुनिया में ट्रैवल करना, इतने इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना, आप काइंड ऑफ इमेजिन कि प्रेशर किस तरह का होता है। हमें 2 डिसीजन इकट्ठे लेने पड़ जाए तो हम घबरा जाते हैं। तो मेरे को ये लगता है कि ये भी एक एग्जाम्पल है। कई बार हम लीडर से पूरा नहीं सीख पाते जो सीखना चाहिए, हम उनके एक एस्पेक्ट पे, क्योंकि उनका बर्थडे है तो हम सिर्फ पॉलिटिकल बातें नहीं करेंगे, तो हम उनको सिर्फ एक पॉलिटिकल एंगल से देखते हैं कि वेदर ही इज डूइंग द राइट थिंग्स, वेदर ही इज टेकिंग इनटू अकाउंट व्हाट इज राइट फॉर इंडिया। पर जो ऐसे टॉप अचीवर्स होते हैं उनसे आप लाइफ में और बड़ी चीजें, अपार्ट फ्रॉम कि एक हम बात करते हैं कि उनकी ग्रिट, जिस तरह की लाइफ से वो गुजरे, जिस तरह की उन्होंने चैलेंजेस लाइफ में फेस किए और उसके बावजूद कमिंग टू द टॉप ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, टॉप पोजीशन इन द कंट्री, और उस पोजीशन तक पहुंचना और इन ऑल, और पिछले और 2 टर्म्स जीतना और ज्यादा बहुमत के साथ जीतना, ये एक उनका एक करिश्मा बताता है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, 72 साल की उम्र में इस तरह की एनर्जी के साथ बात करना, एक जो ऑरा बना के रखना, ये बताता है डिसिप्लिन लाइफ। फोकस सिर्फ एक है, इस देश को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना। और मैं ये मानता हूं कि जो भी टॉप पोजीशन पे हमारे प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, दे वर ऑलवेज फोकस्ड, क्योंकि वो पोजीशन की गरिमा ही ऐसी होती है, कोई चाह के भी कोई नेगेटिव चीज नहीं करता है। तो मेरे को लगता है कि ये एक और लेसन है जो हमारा यूथ उनसे ले सकता है। उन्होंने हमें योगा डे दिया, पर हम, क्योंकि उनका टिपिकली जो हम देखते हैं कि एक फिट फिजिक की जो हमारे दिमाग में आजकल इमेज टीवी देख देख के बन गई है, उनकी वो नहीं रही है। पर ही इज अ स्ट्रॉन्ग मैन, राइट। और आप अलग अलग शेप में स्ट्रॉन्ग और फिट हो सकते हैं अगर आप डिसिप्लिन लाइफ जीते हैं, अगर आप अपनी चीजें कंट्रोल में रखते हैं। तो ये एक उन्होंने चीजें कि वो खिचड़ी खाते हैं, फ्राइड चीजें कम खाते हैं, वेजिटेरियन हैं, ये सारी चीजें, और जो योग रेगुलरली करते हैं, यही चीज उनको और अपार्ट फ्रॉम दैट लव फॉर द कंट्री, यही चीजें हैं जो आपको हमेशा एक जोश में रखते हैं, एक हायर पर्पस, अपने से ऊपर एक पर्पस, कि इट इज नॉट जस्ट अबाउट मी। और जिस बंदे के पास पर्पस अपने से बियॉन्ड होता है, बाकी लोगों के लिए होता है, वो हमेशा उसमें ज्यादा ऊर्जा नजर आएगी आपको। सर, अभी हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऊर्जा की बात करी, अब राहुल गांधी जी की ऊर्जा की बात करते हैं। भारत जोड़ो आंदोलन, काफ़ी कंट्रोवर्सीज भी इसके साथ जुड़ी हुई हैं। क्या लगता है कि इस भारत जोड़ो आंदोलन के अंत तक वो एज अ मेजर ऑपोजिशन पार्टी रिवाइव कर पाएंगे? देखो, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि अभी भी मेजर ओपोजिशन तो कांग्रेस ही है, उन्हीं के सबसे ज़्यादा एमपीज हैं। अगर मैं सेंट्रल लेवल पे देखूं, ये जो भारतीय जोड़ो यात्रा उन्होंने जो शुरू की है, इसका पर्पस तो यही है कि जो उनके फुट सोल्जर्स हैं, जो कांग्रेस के वर्कर्स हैं, उनको और जो आम पब्लिक है, उन तक जो कांग्रेस की विजन है उसको लेके जाना, कि कांग्रेस की ये विजन है और सब लोगों को उसके साथ जोड़ना। अनफॉर्चुनेटली एक लैक ऑफ प्लानिंग और डिसिप्लिन है। सबसे पहले तो वो ऐसे लोगों से मिल रहे हैं जिन्होंने बड़ी स्ट्रॉन्ग एंटी इंडिया, वो एक पेस्टर से मिले जिन्होंने भारत के बारे में अपमानजनक बातें की, भारत के लोगों के बारे में अपमानजनक बातें की। तो सबसे पहले, और फिर उनकी जो टीमें थी, जो उनके प्रवक्ता थे, वो बोल रहे थे ये गलती से हो गया, उनको पता नहीं था कि वो भी यहाँ पे बैठे होंगे। तो ये एक्सक्यूज नहीं है। जब एक राहुल गांधी के स्ट्रेचर के लीडर अगर मीटिंग्स कर रहे हैं तो उसकी पूरी स्क्रीनिंग होनी चाहिए, क्योंकि अगर हमारे ओपोजिशन लीडर ऐसे लोगों से मिलेंगे और जो इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं, तो इससे देश की इमेज को धक्का लगता है।
सेकेंडली मेरे को लगता है कि अगर राहुल, और देखो देश के लिए एक स्ट्रांग ओपोजिशन होना बहुत ज़रूरी है, और मैं होप करता हूं चाहे केजरीवाल जी हों चाहे राहुल गांधी जी हों, कोई ना कोई तो स्ट्रांग ओपोजिशन आए ताकि वो हमारी जो गवर्नमेंट है, मैं उनको उनके ऊपर एक अच्छा चेक और बैलेंस रहता है। इसीलिए डेमोक्रेसी में स्ट्रांग ओपोजिशन की जरूरत है, पर दे हैव टू स्टार्ट आस्किंग द राइट क्वेश्चंस। दे फॉल इन ट्रैप ऑफ बीजेपी। बीजेपी, मेरे को ऐसा कई बार लगता है कि बीजेपी जो उनसे कहलवाना चाहती है वो बेचारे कह देते हैं। तो ही हैज टू टॉक अबाउट कोर इश्यूज। अगर बीजेपी ये कहती है कि भाई देश को स्ट्रांग होना चाहिए और सबके इक्वल अधिकार होने चाहिए, चाहे वो मेजॉरिटी से हो माइनॉरिटी से हो, इस बात को आप अपोज नहीं कर सकते। ये बात हर कोई बिलीव करता है, हर एक पढ़ा लिखा समझदार आदमी, हर भारतीय चाहता है कि सबका इक्वल सम्मान हो और इक्वल राइट्स हो, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले। पर उनको ये लगता है क्योंकि बीजेपी ने बोली है तो मेरे को ये बात, अब इसको अपोज करना है। तो ओपोजिशन का मतलब ये नहीं होता हर बात को अपोज करना। ओपोजिशन का मतलब है कि जहां पे आउट ऑफ जो ऐसी चीजें हो रही हैं जो देश के हित में नहीं है, उस पर अपोज करना जी। तो मेरे को ये लगता है कि राहुल गांधी जी के जो एडवाइजर हैं, दे नीड टू अंडरस्टैंड, राहुल गांधी जी नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई हमें उन चीजों पे अपोजिशन करनी है जो देश के हित में नहीं। और ऐसा नहीं है कि सरकार परफेक्टली चलती है, सरकार कई गलतियां करती होगी, तो हमें उन कोर मुद्दों को समझना होगा जो देश के हित में नहीं है और उनके ऊपर फोकस करना पड़ेगा। देश की तरक्की में कंट्रीब्यूट करना होगा। मैं सोच रहा था कि कितनी बार होता है कि जब हम किसी भी सरकार या कोई बजट भी आता है या हम कोई भी सरकार की परफॉर्मेंस एनालाइज कर रहे होते हैं, ओपोजिशन वाले ये बोलते हैं जी 0 मार्क्स, कुछ नहीं किया, राइट, और गवर्नमेंट बोलती है जी हमने तो सब कुछ ही कर दिया। मैं चाहता हूं कि हमारी देश की जनता को पता नहीं कब ऐसे लीडर्स मिलेंगे जहां पे खुद गवर्नमेंट बोलेगी कि हमसे ये कमियां रह गई हैं और हम ये करेंगे, और ओपोजिशन बोलेगी कि देश के हित में ये चीजें हुई हैं। उससे देश का सम्मान बढ़ेगा। जब हमारी ओपोजिशन ये बोलेगी इंटरनेशनल फोरम्स में जाके कि देश में डेमोक्रेसी नहीं रही, इंस्टीट्यूट्स का मिसयूज हो रहा है, उससे हमारी गवर्नमेंट को नुकसान नहीं होगा, उससे नुकसान होगा देश की जनता को, उससे नुकसान होगा देश को। क्योंकि जो फॉरेनर्स हैं जो वहां यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जब आपका प्रिंसिपल ओपोजिशन लीडर जाके ये बोल रहा है जी वहां पे तो डेमोक्रेसी नहीं रही, माइनॉरिटीज के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जा रहा, तो ये चीजें जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट आप से जो विदाउट एनी एविडेंस, विदाउट एनी प्रूफ, जस्ट टू अपोज अगर आप ऐसी चीजें बोलोगे तो आप ये देश के हित में बातें नहीं कर रहे हो, और मेजॉरिटी ऑफ द कंट्री विल नॉट लाइक इट। कौन ये, हम सब बोलते हैं कि हमारा देश महान है, ऐसा थोड़ा हमारा देश परफेक्ट है। हम जो चीजें अचीव, जो हमारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हैं, क्या हमने वो सब अचीव कर ली है? इक्वालिटी फॉर ऑल, क्या ये कभी होगा? कभी नहीं होगा। क्या हमने बेसिकली हाइजीन, फूड, सेफ्टी फॉर ऑल अचीव कर लिया? ये कभी नहीं होगा। पर यू हैव टू लव योर कंट्री, क्योंकि ये जो ड्रीम्स हैं, जो आइडियल्स हैं, ये शायद कभी भी अचीव ना हो, पर हम हर रोज उसकी तरफ तो बढ़ रहे हैं। आज हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर हो रहा है, आज अगर फॉरेन एग्रेशन है तो हम उसके अगेंस्ट स्ट्रांगली खड़े हो रहे हैं, हमारी डिफेंस फोर्सेस स्ट्रांग हो रही है, इन केस ऑफ इनोवेशन हम आगे बढ़ रहे हैं, हम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में आगे बढ़ते जा रहे हैं, बट दे आर नॉट परफेक्ट, उसके अंदर बहुत कमियां हैं, पर हम उस डायरेक्शन में तो जा रहे हैं। और इसमें कांग्रेस का भी रोल रहा है जी। पेस उनका कम हुआ होगा, पर उन्होंने भी डेमोक्रेसी को यहाँ पे जब एक देश नया नया आजाद होता है तो उस पर बहुत खतरा होता है डेमोक्रेसी को रहने का। आप अपने आसपास देख लीजिए, ज्यादातर देशों में डेमोक्रेसी नहीं बची। पाकिस्तान को आप डेमोक्रेसी नहीं बोल सकते, सिंगापुर में डेमोक्रेसी नहीं है, चाइना की तो चलो बात ही छोड़ दो। तो पॉइंट ये है कि कांग्रेस ने जो चीजें की हैं उस पर फोकस करें, और जो चीजें होनी चाहिए, हम अभी जो जिस तरह का देश हमारा होना चाहिए उससे बहुत दूर है। सरकार जितना कर सकती थी कर रही है, पर बहुत ज्यादा कर भी सकती थी जी। उन क्वेश्चंस पे फोकस करो, इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करो, पॉलिसीज पे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पे फोकस करो, बच्चों की एजुकेशन पे फोकस करो। गवर्नमेंट तो चाहती है कि आप उनके बताए हुए मुद्दों पे लड़े रहो, जिसमें आप हमेशा ही कम आओगे। अगर आप लड़ से बात करोगे रिलीजियस चीजों की, राइट, आप उस डिबेट में पढ़ोगे तो आप और कट्टरपंथी को बढ़ाओगे। तो मेरे को ये लगता है कि हमारी ओपोजिशन को नेशन बिल्डिंग, अगर लेट्स से एक सिंपल सा एग्जांपल है, प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं कि वन कंट्री, वन वी शुड बी टुगेदर, और अगर आप जाके बोल रहे हो वी वर नेवर वन नेशन, वी वर यूनियन ऑफ स्टेट्स, और अब आप भारत जोड़ो यात्रा पे आ गए, मतलब ये ऑपोजिट चीजें ना, कॉन्ट्रडिक्टरी चीजें कर रहे हो। और कौन ये बोलेगा कि आप लोगों को मत जोड़ो? जब आप बात करोगे कि हमारे देश में सब भाषाओं की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, और हिंदी ऑफ कोर्स ज्यादातर लोग बोलते हैं, ये सब लोग, गवर्नमेंट बोल रही है कि इससे हम आपस में जुड़ सकते हैं क्योंकि ये कॉमन लैंग्वेज है, पर आप ये बात करोगे नहीं कि इससे तो बाकी
भाषाओं का अपमान है तो वो एक गलत इंटरप्रिटेशन है और ज़्यादातर लोग उसको पसंद नहीं करेंगे जी। तो मेरे को ये लगता है कि थोड़ी सी हाई आईक्यू एडवाइजर्स की ज़रूरत है राहुल गांधी जी को, पर अगर बात इससे कुछ डीप है तो वो मैं नहीं जानता। सर, गौतम अदानी विश्व के दूसरे सबसे अमीर आदमी बने और मेरा ख्याल ये पहली बार हुआ है कि कोई एशियन टॉप 3 बिलियनर्स में शामिल हुआ है। देखो, ये खुशी की बात है कि ये प्रॉब्लम की बात है? आपका क्या ख्याल है गुरलीन? आई फील इट्स अ गुड न्यूज़। इट्स अ गुड न्यूज़। हाँ। पर हमारी ओपोजिशन और हमारे कई ऐसे लिबरल लोग ये कहते हैं कि भाई ये तो इसका मतलब ये है कि भारत में अमीर अमीर होता जा रहा है और गरीब गरीब होता जा रहा है। इसका मतलब ये है सारी दुनिया अपने देश के टॉप अचीवर्स पे प्राउड फील करती है जी। यही बात मैं अभी भी कर रहा था कि हमारे ओपोजिशन वाले ये बोल रहे हैं कि शायद ये गवर्नमेंट सपोर्ट से बने हैं। और मैं आपको बात बता दूं, दुनिया में जितने भी टॉप बिलियनियर्स बने हैं उनको गवर्नमेंट की अगर सपोर्ट नहीं होगी तो कोई बन ही नहीं सकता। ये फैक्ट है जी। क्यों? पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप अनफेयर एडवांटेजेस दो। आज हमारे भारत को ऐसे 20 कंपनियों की जरूरत है जो मल्टी बिलियनियर और टॉप कंपनीज हो, जो फॉर्च्यून 500 के अंदर हो, क्योंकि R&D सिर्फ गवर्नमेंट कर सकती है या बहुत बड़े प्राइवेट प्लेयर कर सकते हैं। छोटे छोटे स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस ऑफ कोर्स एम्प्लॉयमेंट के लिए तो जरूरी हैं, वो उसमें ज्यादा बेनिफिट देते हैं, पर लाख इन्वेस्टमेंट पे वहां पे ज्यादा जॉब मिलती हैं, पर R&D वो नहीं कर पाएंगे कभी भी। तो अगर फ्यूचर में आपको चाइना से compete करना है, आपको यूएसए से compete करना है, तो इनोवेशन तो लानी पड़ेगी। तो इनोवेशन के लिए जो बिलियंस ऑफ डॉलर के फंड्स चाहिए, वो आपको क्या लगता है हमारे पड़ोसी गुप्ता जी करेंगे या अदानी अंबानी जैसी बड़ी कंपनीज करेंगी? जी। तो हमें एक इनोवेशन फोकस देश बनना है, हमारे लोगों की अचीवमेंट पे प्राउड फील करना है और हर अचीवमेंट को शक में नहीं डालना है। आपको क्या लगता है कि मोदी साहब के प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले अदानी जी क्या रेडी लगाते थे? ही वॉज अ बिग बिलियनियर बिजनेसमैन। जी। एंड और आप देखिए हमारी इकोनॉमी में आज आप ग्लोबली देखिए कि पूरी स्टॉक मार्केट्स में उन्होंने वैल्यू लूज की है और इंडिया की कंपनीज ने वैल्यू उतनी नहीं लूज की है, और हमारी ग्रोथ रेट देख लीजिए। तो मेरे को ये लगता है कि हमें इसको पॉजिटिवली देखना चाहिए, पर जो लोग बिलियनियर बन रहे हैं उनको भी ये देखना चाहिए नाउ दे गिव बैक। They give back not just in charity, but mainly by developing innovations. They can afford that. They should commit to innovation. अगर देश को sustainable edge देनी है तो अंदानी, अबानी, टाटास, बिरलास और भी बड़ी बड़ी कंपनियों को they should commit billions of dollars in cutting edge research, in basic sciences, in materials, in semiconductors. तभी हम देश को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। Absolutely, sir. Sir, PM Modi and the Chinese president come under one roof for Shanghai Cooperation Organization meet. So, what do you have to say about the same? They came under one roof, but they never smiled at each other, right? उन्होंने हाथ भी नहीं मिलाया, और तो ये भी एक उसका एक मैसेज है। So basically in politics, you know, these kind of optics are very important. So basically पिछले काफी टाइम से ये अटकलें लगाई जा रही थी कि जी जिनपिंग और प्राइम मिनिस्टर मोदी की SCO समिट पे मीट होगी, पर वो नहीं हुई। उसका सिंपल सा रीजन था कि इंडिया हैड अ वेरी क्लियर कट डिमांड, डी एस्केलेट ऑन द बॉर्डर। चाइना ये कह रहा था कि वो बात हम बाद में करते रहेंगे, तब तक ये बाकी चीजें आगे बढ़ाते हैं। तो इंडिया ने डिप्लोमेटिकली इस पे एक मेजर विक्ट्री की है। हालांकि थोड़े दिन पहले ये न्यूज़ थी कि बाय 13th डी एस्केलेशन शुरू हो जाएगी। सो इट इज़ अ गुड डिप्लोमेटिक विक्ट्री फॉर इंडिया। इंडिया ने भी हार्ड रिजॉल्व लिया है कि बॉर्डर को आपको डी एस्केलेट करना पड़ेगा, अदरवाइज ट्रेडिंग टर्म्स आर इन देयर बेनिफिट। इसीलिए हमने कुछ उनका पॉइंट ये था कि डिस्कस करें कि जो उनकी ऐप्स बैन हुई हैं, जो कंपनीज पे रेड्स हुई हैं, तो बेसिकली विदाउट दैट इंडिया विल नॉट गिव देम एन इंच। दैट इज द होल आइडिया ऑफ दिस डिप्लोमेसी। बाकी SCO समिट वॉज नॉट जस्ट अबाउट चाइना एंड इंडिया। आप अगर देखें शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रफली दुनिया की 65% पॉपुलेशन आती है विद द करंट मेंबर सेट और 40% GDP। और जैसे नए नए मेंबर बनते जा रहे हैं, इट विल बी अ मेजर ग्रुप। अब इसका एडवांटेज क्या है? इसके अंदर कॉमन ग्रुप्स बहुत हैं। इंडिया इज पार्ट ऑफ दिस ग्रुप ऑल्सो, इंडिया इज पार्ट ऑफ क्वाड ऑल्सो। तो इससे क्या होता है कि फ्यूचर में कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस, बिकॉज देयर इज अ कॉमन डिनोमिनेटर, कम हो जाते हैं और इंडिया का रोल और इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। तो मेरे को लगता है कि इस ग्रुप की जो पार्टनर कंट्रीज हैं उसके साथ इंडिया शुड डेवलप स्ट्रॉन्गर रिलेशंस, डिफेंस रिलेशंस, और वो इंडिया को अपनी इस रीजनल सिक्योरिटी में हेल्प करेगा। इंडिया शुड फिगर आउट अ वे कि SCO समिट को कैसे अपने लिए मैक्सिमम लीवरेज करना है। इसके अंदर मोदी ऑल्सो हैड अ brief discussion with President Putin. He communicated his basically worries about the conflict that is going on, and Putin has assured him, क्योंकि इस वक्त जो
Prime Minister Modi, he is a world statesman. He has been a world statesman. So he is worried because of these conflicts, because of Taiwan conflict. What has happened is whole world has become a dangerous and costlier place. So when the world becomes a costlier place, it benefits the rich. It affects the poor nations. उनकी वैक्सीन सप्लाईज महंगी हो जाती हैं, उनकी दवाइयों की सप्लाई महंगी हो जाती है, उनके पास खाना महंगा हो जाता है और इसका असर होता है गरीब लोगों पे. तो मेरे को ये लगता है कि इस वक्त प्राइम मिनिस्टर मोदी इज प्लेइंग अ की रोल इन ट्राइंग टू डिफ्यूज द सिचुएशंस अक्रॉस द ग्लोब. पूरी दुनिया में जो ऐसी खतरनाक सिचुएशंस बनती जा रही हैं उसको डिफ्यूज करने में प्राइम मिनिस्टर मोदी का एक मेजर रोल बन रहा है, और जिससे इंडिया की भी पूरी दुनिया में जो एक सॉफ्ट पावर है वो बढ़ती जा रही है. और एज यू ग्रो इन लाइफ, as you grow as a nation, you will face bigger opponents, और इंडिया को उसी हिसाब से अपने इकोनॉमिक और मिलिट्री कैपेबिलिटीज को डेवलप करते रहना होगा. सर, आखिरी सवाल, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट, वर्ल्ड कैन फेस रिसेशन नेक्स्ट ईयर, सो व्हाट इज द नीड ऑफ दैट? Look, that is, अगर मैं जो डिस्कशन कर रहा था, that is what exactly प्राइम मिनिस्टर मोदी इज ऑल्सो वरी अबाउट. आज देखो, ग्लोबल इकोनॉमी सिर्फ इंडिया से तो चलेगी नहीं, ना ही चल रही है, राइट. वी आर दी 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी राइट नाउ इन ऑल प्रोबेबिलिटी, और 5 से 10 सालों में तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएंगे. बट द पॉइंट इज कि इंडिया के अलावा बाकी सारी मेजर कंट्रीज आर इन रिसेशन. तो शायद वर्ल्ड इकोनॉमी ऑलरेडी, चाहे कुछ टेक्निकल वजह से ना हो, एक रिसेशन की तरफ बढ़ रही है. और यही प्राइम मिनिस्टर मोदी कहना चाह रहे हैं कि जब आप ट्रांजैक्शनल कॉस्ट, द कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ा दोगे बिकॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रिस्क, तो क्या होगा? इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ जाएंगे. इंश्योरेंस कॉस्ट से कोई वैल्यू तो नहीं ऐड होती, सिर्फ कुछ बैंकों को पैसे मिलते हैं. ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ जाएंगे बिकॉज ऑफ द रिस्क, एनर्जी कॉस्ट बढ़ जाएंगे, फूड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएंगे. तो अपने आप क्या होगा? इन्फ्लेशन बढ़ेगी जी. अब जब इन्फ्लेशन बढ़ी तो सारे देशों ने क्या किया? मनी सप्लाई को टाइट किया. अब मनी सप्लाई ऐसा तो है नहीं कि टारगेटेड टाइट हो रही है, उन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया मनी सप्लाई को टाइट करने के लिए. तो उससे क्या हुआ? जो कंपनियों ने लोन लेके इन्वेस्टमेंट करनी थी उनके लिए लोन महंगे हो गए, तो इन्वेस्टमेंट्स कम हो गई जी. जब इन्वेस्टमेंट कम होंगी तो अपॉर्चुनिटीज, जो लोगों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज और कम हो गई जी. तो इसका एक स्पाइरल इफेक्ट आता जा रहा है जो पूरी दुनिया की मेजर इकोनॉमीज, इस वक्त आप यूके की बात कर लीजिए, इस बार के जो लास्ट इलेक्शन हुए, कॉस्ट ऑफ लिविंग हैज इंक्रीज सो मच कि इस बार वो कह रहे हैं सर्दियों में लोगों के पास अपने घरों को गर्म करने की ऑप्शन नहीं होगी. आप जर्मनी की हालत देख लीजिए, आप यूएसए की सिचुएशन देख लीजिए, आप चाइना की सिचुएशन देख लीजिए, कितने बैंक बंद हो गए. वहां पे तो बैंकों को सिक्योरिटी देनी पड़ गई, टैंक लगाने पड़ गए. कितनी हाउसिंग कंपनीज बिल्कुल बंद हो चुकी हुई हैं. तो इस वक्त प्रॉब्लम ये है कि हमें ये जो रिसेशन है इसके लाइकलीहुड बहुत हाई है. अब इसको मैं अगर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट से देखूं, रिसेशन का असर हम पे तो होना ही होना है. ऑलरेडी काफी एजेंसीज ने हमारे भी ग्रोथ रेट डाउनवर्ड उनको एडजस्ट करना शुरू कर दिया है कि जो पहले सोच रहे थे 7.8% होगा, अब सोच रहे हैं 7% होगा, और शायद ये और करेक्शन आए. पर इंडिया को अपने सिस्टम्स को थोड़ा सा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बनाना पड़ेगा. इंटरनल मार्केट फॉर्चुनेटली इंडिया की बहुत स्ट्रांग है. अगर हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कर लें और इंडिया के अंदर ही चीजों को मैन्युफैक्चर करके कंज्यूम करें, तो मेरे को लगता है कि इस रिसेशन को हम बाकी देशों से बेटर सिचुएशन में झेलने में, इंडिया का एक ही बड़ा रिस्क है, वो है एनर्जी जी. तो एनर्जी है एक जो मेजर फैक्टर, क्योंकि पर वो मेरे को लगता है रिसेशन में इंडिया को फायदा दे दे. जब रिसेशन होता है तो एनर्जी की डिमांड कम होती है, तो एनर्जी के प्राइस कम आते हैं, वो शायद इंडिया को उल्टा फायदा दे दे. थैंक यू सो मच फॉर योर व्यू सर, इंसाइटफुल इंडीड. सो देश के कोर मुद्दों के सही विश्लेषण के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, देखते रहिए पंजाब टुडे, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डाउनलोड आवर ऐप. थैंक यू.